دنیا بھر کی طرح ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں اور گزشتہ ایک دن میں مزید 68 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ کورونا کیسز کی تعداد 89,249 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,812 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک 6,38,000 زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گکی سے محمد علی زرکون کے مطابق کمشنر یوب ڈویژن کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر قربان علی مکسی کا شہر کا دورہ، لاک ڈاؤن کا جائزہ لیا اور 20 SOPs کی خلاف ورزی پر ماسک نہ پہننے پر دکانداروں کے خلاف کارروائی کی۔ 11 دکانوں کو سیل کر دیا، جس میں وزیر خان راشن ڈیلر، شاہ محمد الیکٹرک سٹور، داتا ہیئر ڈریسر، یادگار موٹر سائیکل شو روم، نیو بلاک سپر سٹار ایجنسی، مسلم بیکری، عزیز میڈیکل سٹور، زبیر شاہ میڈیکل سٹور، یاسر الیکٹرک سٹور، یوسف ہارڈ ویئر اور سمیع اللہ شاپنگ سینٹر شامل ہیں۔ دکانداران 20 SOPs پر مکمل عمل درآمد کریں، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر قربان علی مکسی کا کہنا ہے کہ کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے، مگر ہم احتیاط کا نام تک نہیں لیتے، خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ کورونا سے نجات کا واحد حل احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے۔ سنجاوی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بلوچستان بھر کی طرح آج سنجاوی میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر دکانیں بند تھیں، ماسوائے گوشت، سبزی، ہوٹل اور میڈیکل سٹور کے۔ سنجاوی شہر میں پولیس اور لیویز کبھی کبھی گشت پر نکل آتے ہیں، دکانیں چیک کرتے ہیں، مگر دکانیں بند ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سنجاوی محمد حسن انور منہاس سے انجمن تاجران کے رہنماؤں کلیم اللہ دمبڑ، ملک امین دمبڑ، حاجی ملا نظر آقا، ملک جمعہ خان دمبڑ، نصیب اللہ دمبڑ، عجب صافی نے ملاقات کی۔ AC سنجاوی نے ان سے کہا ہے کہ دکاندار SOPs پر عمل کرتے ہوئے دکانیں چلائیں، خلاف ورزی پر دکانیں سیل کریں گے۔ تاجر رہنماؤں نے AC سنجاوی کو یقین کروایا ہے کہ کورونا کے باعث SOPs پر عمل کرتے ہوئے دکانیں کھولیں گے۔ مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں ہمارے نمائندے یوسف ناصر کے پاس۔ جی یوسف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان بھر کی طرح آج سنجاوی شہر میں بھی اکثر دکانیں بند، لاک ڈاؤن تھا، ماسوائے میڈیکل، گوشت کی دکانیں، سبزی و ہوٹل۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنجاوی شہر میں پولیس اور لیویز گشت کر رہے تھے، دکانیں چیک کر رہے تھے، مگر دکانیں بند تھیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سنجاوی محمد حسن انوار مناز سے مرکزی انجمن تاجران کے صدر کریم اللہ دمبڑ، حاجی ملا نظارہ کا، ملک جمعہ خان، نصیب اللہ دمبڑ، انجمن تاجران حریم آغا گروپ کے صدر ملک امین دمبڑ، چیئرمین عجب خان صافی نے ملاقات کی۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد حسن انوار مناس نے ان کو بتایا کہ دکانداران حضرات مکمل طور پر احتیاطی تدابیر کے تحت دکانیں چلائیں، اگر خلاف ورزی ہوئی تو دکانیں بند کریں گے۔ تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے اسسٹنٹ کمشنر کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ جو رولز ہیں ان کے مطابق ہم دکانیں چلائیں گے، کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ محمد یوسف ناصر، 18 نیوز سنجاوی۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر 18 نیوز۔ رانا رضوان احمد کے مطابق بہاول نگر ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جدون نے کہا ہے کہ نہری پانی کی چوری کی روک تھام کے لیے روایتی طریقہ کار کی بجائے مؤثر اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ پانی چوری کی شکایات پر سینکڑوں افراد پر مقدمہ درج کروانے کی بجائے 2-3 بڑے مجرموں کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ نہری پانی کی چوری کو مکمل طور پر روکا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے مزید کہا ہے کہ ٹریننگ پروگرامز میں تمام کینال ڈویژن کے افسران کو شامل کیا جائے تاکہ افسران کی اہلیت اور استعداد کار میں اضافہ کیا جا سکے۔ FIRs اور استغاثے میں خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر شعیب خان جدون نے اس موقع پر کہا ہے کہ اریگیشن افسران اپنے محکمے کی فعالیت اور نیک نامی کے لیے محنت اور لگن سے کام کریں، پانی چوری کے واقعات کو روک کر ٹیل کے کاشتکاروں کو حق تلفی اور استحصال سے بچائیں۔ اجلاس سے SCE، اریگیشن اور پروسیکیوشن آفیسرز نے بھی خطاب کیا۔
खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से अपने नुमाइंदे अयूब साबिर के मुताबिक पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। जनाब उमर सईद मलिक DPO ओकाड़ा के हुक्म पर जनाब DSP दीपालपुर आबिद हुसैन जफर की जेर निगरानी मंडी अहमदाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद जाफर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जा से 1339 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक के अहकामात की रोशनी में जिला भर में मंशियात फरोशों, इश्तिहारियों और जवारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक चौकी हवेली लखा की इंचार्ज खातून सब इंस्पेक्टर अनम परवेज ने साबिका रिकॉर्ड याफ्ता उस्मा बीबी को गिरफ्तार करते हुए मुलजिमा के कब्जा से 2100 ग्राम चरस बरामद कर ली। मुलजिमा उस्मा बीबी मकरू धंधे में मुलविस है। मुलजिमा उस्मा गुज़श्ता रोज कॉलेज रोड हवेली लखा नस्द चर्च पुख्ता सड़क गर्ल्स हाई स्कूल और गर्ल्स कॉलेज के दरमियान वाली सड़क पर चल फिर कर मंशियात फरोख्त कर रही थी, जिस पर पुलिस पार्टी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा रिकॉर्ड याफ्ता और इससे कबल भी जेल जा चुकी है। हरनाई मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक हरनाई में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर हरनाई अजीम जान दुम्बड़ की हिदायत पर हरनाई के इलाके नाकिस में नायब रिसालदार फतेह खान फौंदी के हमरा लेवीज एहलकारान लोगों में एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क तकसीम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर हरनाई के ऑफिस से एक लेटर भी जारी हुआ था, जिसमें जुमे के दिन हरनाई शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का हुक्म दिया गया था, जबकि बाकी 6 दिनों सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। हरनाई में कोरोना वायरस के दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ था, जबकि इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलकर आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिससे अमेरिका में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। खबर शामिल करते हैं ढारनवाला से ब्यूरो चीफ 18 न्यूज चौधरी नईम खालिद के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ढारनवाला में कायम एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में टाइगर फोर्स के रजाकारों ने ड्यूटी संभाल ली। टाइगर फोर्स के रजाकार एहसास कफालत सेंटर में आने वाले शहरियों की रहनुमाई और कोरोना वायरस से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन कर रहे हैं। ताहम देखने में आया है कि बेलौस और रजाकाराना तौर पर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हुए टाइगर फोर्स के रजाकारों को ताहाल हुकूमत की जानिब से हैंड सैनिटाइजर, मास्क और दीगर हिफाजती सामान मुहैया नहीं किया गया। टाइगर फोर्स के रजाकार अपनी मदद आपके तहत हैंड सैनिटाइजर खरीद कर शहरियों को इस्तेमाल करवा रहे हैं। टाइगर फोर्स के रजाकारों ने सिटी प्रेस क्लब ढारनवाला से बात करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया है कि इन्हें हैंड सैनिटाइजर, मास्क और दीगर हिफाजती सामान मुहैया किया जाए। मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पशीन कायम लशारी का कोरोना बीमारी से निपटने के लिए मुख्तलिफ गैर सरकारी फलाही इदारों के मस्बत किरदार के हवाले से इजहार ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा की सूरत अख्तियार कर चुका है, तो इसी सिलसिले में पशीन में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों में आगाही मुहिम के तौर पर उनको बताया गया है कि किस तरीके से इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। जैसे आप सबको मालूम है कि जितनी भी सियासी तंजीमें, मजहबी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस इस कम्युनिकेशन में हमारे साथ आगे हैं और फ्रंटलाइन के तौर पर काम कर रहे हैं, ताकि वो हर जगह जा के लोगों को बता भी रहे हैं और उनमें आगाही भी दे रहे हैं। इस सिलसिले में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी DPCR टीम का, पोलियो टीम्स का, जो उन्होंने इस वक्त में ज़िले इंतज़ामिया का भरपूर साथ दिया और मुख्तलिफ गाँवों में जाकर हमारी पैगाम के कोरोना वायरस से कैसा बचा जा सकता है गाँव तक पहुँचाया। देखिए, इसकी बचाव सिर्फ और सिर्फ एहतियात में है। अभी तक पूरी दुनिया इससे परेशान है, पर इसका सिर्फ हल एहतियात है। जैसे कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अमूमन हर वक्त अपने हाथ धोएं और जब घर से निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का इख्तियार करें और खाम खा घर से बाहर निकलने में इज्तनाब करें। तो मैं फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपनी टीम्स, अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी अवामी हल्के हैं, अपनी ज़िला इंतज़ामिया का साथ दें, अपनी DPCR की टीम का साथ दें, पोलियो वर्कर्स की जो
मैसेजेस हैं उन पे जो है अमल दरामद हों और इस वबा में लड़ने के लिए हमारी सपोर्ट को वही लड़ा। ज़ियारत से एजाज अहमद से खबर शामिल करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सदर सरदार फरीदुल्ला दुम्मड़ ने कहा है कि इलाके के मसाइल मालूम करना और उनके दुख दर्द में हर वक्त उनके दरमियान रहना हमारा मिशन और जिद्दोजहद में शामिल है। हम बिला रंग और नस्ल अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। ये बात उन्होंने आज ज़ियारत जोतीर में 2 कबाइल जनासाई और बाबसई के दरमियान कामयाब जिरगा करवाया। दोनों कबाइल को आपस में शेर व शुक्र कर दिया, जिस पर कबाइल ने सरदार फरीदुल्ला दुम्मड़ का शुक्रिया अदा किया। सरदार फरीदुल्ला दुम्मड़ ने 18 न्यूज़ को बताया है कि ज़ियारत संजावी के अवाम के दरमियान रहना और उनकी मुश्किलात का हमें एहसास है। हम मिलकर ज़ियारत संजावी को एक अमन का डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे और हमें बाचा खान के अदम तशद्दुद की राह पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारना है, क्योंकि बाचा खान हमारे माशरे के लिए एक किताब हैं जिस विराज पर हम अमल पैरा हैं। आज उन्हीं की बताए हुए रास्ते पर हम गामज़न हैं। खबर शामिल करते हैं हुजरा शामुकीन से। अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद रफीक के मुताबिक हुजरा शामुकीन में पुलिस की कार्रवाई। जनाब उमर सईद मलिक DPO साहिब उकाड़ा के हुक्म पर जनाब DSP आबिद हुसैन जफर साहब की ज़ेर निगरानी नाजायज असलहा हवाई फायरिंग करने और असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम शहजाद अली नवाज बिसरान सादिक के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर के अहकामात पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर वट्टू का हाल रोड पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। 25,000 रुपये पार्किंग स्टैंड के कंडक्टर्स को जुर्माने किए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रेगुलेशन ऑफिसर का कहना है कि 15 मोटरसाइकिल्स को जब्त कर लिया गया है। एक गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म करवा दिया है। 2 ट्रक सामान कब्जा में ले लिया गया है। मार्केट्स में मातहत अमले की ड्यूटियां लगा दी हैं। मुतल्लिका थाने FIR का इंदराज करवा दिया गया है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक SOPs के खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक। कोरोना की वबा की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। फोकल पर्सन खुर्शीद जिलानी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की कोरोना के हवाले से तयशुदा SOPs पर अमल दरामद करवाना अव्वलीन तरजीह है। जिला भर में SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर्स और CEO बल्दिया मुतहर्रिक हैं। जफरवाल DPO नारोवाल जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर पुलिस थाना जफरवाल की कार्रवाई। मंशियात फरोश तारिक महमूद गिरफ्तार। शराब की चालू भट्टी, 10 लीटर शराब और एक राइफल पंप एक्शन बरामद हुआ है। 2 इश्तिहारी मुजरिम एहसान और हमजा गिरफ्तार। 2 अदद पिस्टल बरामद। हरनाई सानेहा डंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। BNP हरनाई के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहिरा। उन्होंने कहा है कि सानेहा डंग की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। डंग केज का हालात ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि सानेहा डंग बलोच और बलोचिस्तान के कबायली रवायात के खिलाफ है। इससे वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत वक्त से मुतालिबा करते हैं कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि शहीद मलिक नाज बलोच जैसे बाहिम्मत खातून सदियों में पैदा होती हैं। हम उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। शहीद के लवाहिकीन को इंसाफ देने का मुतालिबा है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सूबे के अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती पर खामोश नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी में कायदे सरदार अख्तर जान मेंगल की क़यादत में बलोचिस्तान में जहां पर भी जुल्म होगा BNP इस जुल्म के खिलाफ खड़ी होगी। एहतजाजी मुजाहिरे के शुरका ने सानेहा डंग केज में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी और मुतासिरा खानदान को इंसाफ दिलाने का मुतालिबा किया है।
जफरवाल डीपीओ नारोवाल जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर डीएसपी जफरमाल मियां आसिफ की निगरानी में एसएचओ थाना जफरवाल बशीर डोगर ने इश्तिहारी मुजरिमों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 2 इश्तिहारी मुजरिम हमजा और एहसान को गिरफ्तार करके उनसे 2 पिस्टल बरामद करके दोनों को पाबंदे सलासल कर दिया। एक और कार्रवाई में इश्तिहारी मुजरिम वहीद रिजवी को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया। अहले इलाका ने एसएचओ थाना जफरवाल बशीर डोगर की इस काविश को सराहा और पुलिस पर एतमाद का इजहार किया। अहमद स्टोर दिलकशा रोड लियाकताबाद पर डकैती की वारदात। 2 डाकू मालिक शहजाद अलीम से गन पॉइंट पर लूटमार करके सरेआम फरार हो गए। दुकान पर मौजूद कस्टमर्स हजरात से भी कैश मोबाइल लूट कर ले गए और दुकान में फायरिंग भी की गई। आपके साथ वारदात 2 लड़के मशकूक मुझे नज़र आए हैं कि मैंने शीशे से देखा है कि 2 लड़के आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा है, मैं अपने लड़के को कह रहा हूँ कि यार ये लड़के मशकूक लग रहे हैं, मुझे ज़रा चेक करो इसे। लड़का आगे गया है, लड़के ने देखा है कि उसने कहा हाँ जी सर क्या लेना। उन्होंने धक्का मारा उन्हें उसे। मैं भी बाहर काउंटर से आते बाहर आया, मुझे तो उसने पकड़ लिया। मैंने पहले उसे पकड़ा लेकिन मैं पिस्तौल दे के फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना। फिर उसने मुझे सर पे कुछ चीज़ मारी, मुझे नहीं पता। फिर कैश जो पड़ा हुआ था अदर वो सारा ले गए। फिर भी किया उन्होंने। जब मैंने शोर डालना शुरू किया ना ऊँची जब मेरे मेन कैश के पास पहुँचने लगे हैं ना तो फिर उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। जब शोर किया तो फिर उन्होंने एक हवाई फायर किया अपनी छत